also, right? Yeah, very like few of them, not Yeah. much, because ठीक है, ठीक है, ठीक है. So once people join, let us know. Then हाँ, we, sure, sure, sure. yeah, yeah. साउंड साफ आ रहा है ना सर? हाँ, साफ है, साफ है, साफ है. जय हिंद जी, आयुष आयुष पांडे जी. जय हिंद आयुष. वो चैट आ रहा था मुझे. और जय हिंद विशाल जी. जय हिंद विशाल. प्रशांत जी, आप भी रनिंग कम्युनिटी में हैं, तो मैं कभी मिला नहीं आपसे. नहीं, मेरा बेसिकली थोड़ा इश्यूज था. आई एम अ हार्ट पेशेंट बेसिकली. हाँ, तो 2015 में हुआ, हार्ट अटैक हुआ. उसके बाद आई स्टार्टेड रनिंग. फिर 2017 में वापस हुआ. ओ, जी. उसके बाद डॉक्टर्स लोग ने थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए. जय हिंद सर, जय हिंद गणेश खत्री जी. जय हिंद जय गणेश. हिंद. Yeah, Prashant, thanks for these initiatives. I mean, ये time पे, these are the best initiatives uh, which you would have taken. Lot of you listen to so many people, so many inspiring stories. And, Lots. So I'll just yeah. So what I'll do is we'll just start the. I think we'll start the session. yeah, Okay. So I would like to thank both of you for being a part of this. Thanks a lot. thanks, Prashant. Yeah. So I'll just give you a small brief about Inspiring. Inspirant is a platform which I have started. This is to showcase stories of inspirational individuals who have come up, who have achieved success in a difficult way, or the backgrounds were not that good, and but still they prevailed upon it, and they have achieved success. So, Inspirant is a platform through which we'll be planning to showcase these stories of of normal Indian people. Celebrities and all will be there definitely, but mostly it will be normal Indian people. Okay. I don't know if you know Sharan Mishra. Sharan Mishra, we had a live event last year with her. Yeah. Sharon is a well-known Yes. model, So ex-model, and yeah. So yeah. she was one of our speakers in one of the event which we did last year. Okay. So today, today it's all about fitness and motivation in COVID-19. That's the topic of the webinar. And I'll just introduce our moderator. Just once. Yeah, so Mr. Vijay Nair, he's a decorated Indian naval officer, ultra marathoner, Comrades 2019 finisher, author, blogger, humorist, anchor, motivational speaker, and a trio athlete. And he is very well known in the running community, very much respected, very much loved. His articles are well read, and all his posts have, they get maximum likes, and people do wait for his posts and blogs and all. So he started running for life since he joined Indian Navy in 1999.
January. He is decorated with Operation Vijay War Medal, which is popularly known as Kargil, and Operation Parakram Medal. So, yeah, over to you, Vijay. Yeah, so thanks, Prashant, for inviting, and it's a privilege. Whatever you would have spoken for me, it is into 2,000 or 10,000 times for Praveen. Praveen, I'm privileged. I'm privileged to be a moderator for this, Praveen, and I've been doing a lot of stories on Forge people, and if you see someone with Shaurya Chakra, I mean, he is just above all. And, gallantry medal winner is someone you all adore. So thanks Praveen for this privilege, and thanks Prashant. And yes, I've been running for many years. When I was in Indian Navy, I never used to love running. I mean, when I joined, when I came out, and my weight started because of thyroid. I have a severe thyroid, and yeah, so that's how life takes you. When you have someone in something in abundance, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो. जब हमारे पास बहुत कुछ था फॉल में, यू हैड एवरी प्रिविलेज टू रन ये, और लोग मैराथन में जबरदस्ती नॉमिनेट करके भेजते थे, तब भी नहीं जाते थे. कि जब फौज छोड़ने के बाद व्हेन समथिंग हैपेंस इन लाइफ, कुछ होता है, तभी सब कुछ होता है, so yeah, thanks to not taking much time, because I think Praveen needs a glorious introduction. I am a moderator, so my role is only this much. So thanks Prashant, thanks for the privilege. Yeah. I would like, yeah, few words about our panelist, speaker. He is the only battle-wounded 3 times Ironman of India, a retired Marine commando. He was a part of the 26/11 Mumbai terrorist attack, and he saved around 150 plus lives in Taj Hotel during Operation Black Tornado. We all know about it. He's a commando's tactical trainer. He is a part of Limca book record holder, and plus he is the only lungs damage survivor. And he has been a part of many ultra marathoner, marathon, half marathon, and all those. And on top of that, he's a motivational speaker. So yeah, so over to you. So can you just tell us a little bit more about yourself? प्रशांत जी और लेफ्टिनेंट कमांडर विजय सर जी, मैं आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ऐसे मौके पे जब सभी लोग अपने घर में बंद हैं, उस समय पे आपने इनिशिएट लिया कि ये छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं वो घर तक पहुंचे, और ये स्टोरी एक स्पार्क का काम करती है. तो उस पर हम स्पार्क पे बाद में आएंगे. तो मैं अपने आप को थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं जब 17 साल का था तब मैंने नेवी ज्वाइन की थी एज ए सेलर, और उसके बाद 20 साल का था तब मैंने मार्कोस कोर्स किया था, और उसके बाद मार्कोस बना रहा. 3.5 साल से ऊपर करीब मैं मार्कोस में एक्टिव सर्विस में रहा. उसके बाद मुझे ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो कि मुंबई में हुआ, ताज होटल में मेरा बहुत बड़ा रोल था, और आप कह सकते हैं कि 26/11 में की रोल जो था वो प्ले किया गया हमारी टीम के द्वारा. सो उसमें मुझे 4 गोलियां लगी, और 4 गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में गए. तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था कि ये मुश्किल से 3 से 4 दिन का मेहमान है, जो बचेगा नहीं जिंदा, क्योंकि जो गोली थी वो सेंटर लूप से होकर निकली थी लंग्स के. तो उसकी वजह से दोनों लूप, अपर लूप और लोअर लूप दोनों फट गए थे. तो तीनों लूप तो पूरे डैमेज हो चुके थे. तो ये सब गॉड ग्रेस है, और जो हमारी जनता है, हमारे जो देशवासी हैं, उनका प्यार है कि उनकी जो दुआएं थी वो काम आई, और मुझे भगवान ने दोबारा जीवन दिया. और फिर दोबारा जीवन देने के बाद फिर मैं अपने काम में लगा रहा, और आज भी अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए आज भी मैं काम कर रहा हूँ. और अथक प्रयास है कि जब तक हम इस देश में हैं, जब तक इस देश में सांस ले रहे हैं, तो इस मिट्टी का जो कर्ज है वो एक छोटा सा जीवन भी कम पड़ जाएगा अगर हम कहें. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है मैं अपने देश के लिए करता रहूँ. Thank you, sir. Yeah, Vijay. So
Yeah, Prashant. So over to me. Thanks, Yeah. thanks. So I'm sure there are a lot of participants and many of people would be seeing live on FB. So to all of them, again, it's a privilege, as I say, to interview gallantry medal winner and inspiring personality like Praveen. So I was privileged to be in a Marine Commando base for 3 years as part of my posting. And if you say Marine Commando, जब हम तो फौजी एक होते हैं, जब मैं सबको बोलता हूँ कि ठीक है मैं फौज में हूँ, फौज में एक स्पेशल फोर्सेस होते हैं जो अलग लोग होते हैं, सो दैट इज व्हाट इज मरीन कमांडो. सो they are fantastically fit people. They are trained to kill as well as मैं ये नहीं बोलूँगा मरने के लिए, मारने के लिए they have been trained, and that is what they are elite. सभी लोग नहीं बनते कमांडोज. इसकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, अच्छे अच्छों की निकल जाती है, तो बाकी जो फिल्टर होके जाते हैं वही कमांडो कहलाते हैं. एंड they wear that special since Navy है, they wear the black uniform and maroon beret, and you should see them. हर एक बंदा अपने आप में एक औरा होता है, हर एक बंदा अपने आप में फौज है. So that is what is Praveen. And शौर्य चक्र मिलना, people, मैं तो ये सबको यही बोलूंगा कि अगर आप गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को देखें, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या वॉर मेडल, बस पैर पड़ जाओ उनके, बिकॉज दे आर द पीपल, एंड सो इट्स अ प्रिविलेज. तो प्रवीण, गेटिंग बैक आपके फौज के दिनों में, सो वी टॉक ऑन रनिंग, दिस इज व्हाट प्रशांत हैज टोल्ड मी. सो अ ब्रीफ दिस थिंग कि जब आप फौज में थे, कमांडोज में थे, मैं दर्शकों को आपके जरिए बताना चाहूंगा कि आपकी कमांडो ट्रेनिंग क्या होती थी. देन वी कम बैक टू द नॉर्मल सिविलियन रनिंग, सो आई जस्ट वांट प्रवीण की अगर आप बता देंगे कि आपकी फौज की रनिंग कैसे होती थी कमांडो ट्रेनिंग के. एक्चुअली अगर कमांडो ट्रेनिंग की हम बात करें तो ट्रेनिंग में पर डे का मिनिमम से मिनिमम रन आपका 25 से 30 किलोमीटर का रहता है पर डे का, और उसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटीज उसके अंदर शामिल होती हैं. पूरे दिन आपका रगड़ा चलता रहता है, कहते हैं जितना रगड़ा उतना तगड़ा. तो रगड़ा इतना ज़्यादा चलता है कि आप पूछिए मत. उसी में फिल्टर होते हैं लोग, उस रगड़े से फिल्टर होते हैं. रगड़ा आपको पनिशमेंट नहीं होता है, रगड़ा आपको फिल्टर करने का एक तरीका होता है. रगड़ा जब आप जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस जो है वो काम करता है. वहां पे आपकी प्योरिटी निकल कर आती है. एक रनिंग ही नहीं है कि वहां पे एक रन करना है, रन के अलावा बहुत ज्यादा एक्टिविटीज वहां पे चलती है. रोप वर्कअप सबसे ज्यादा चलता है क्योंकि आपका अपर बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कमांडो के लिए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा वेट और सबसे ज्यादा लोड आपको लेके चलना है. आपका वेपन्स होगा प्लस कम से कम 18 से 22 किलो का वजन आपको कैरी करना है, जो बैटल वेट होता है. तो वो एक कमांडो तैयार करते हैं. और मेरे साथ में कुछ नेवी के जो एलीट बंदे रहते हैं, जो एथलीट हैं, वो भी आते हैं उसमें. और बहुत अच्छे अच्छे स्विमर्स, जो नेवी के स्विमर्स हैं, वो भी मार्कोस का एप्टीट्यूड और कोर्स करने के लिए आते हैं. लेकिन वो ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते उस चीज़ में, क्योंकि कमांडो में आपकी सिर्फ एक रनिंग और एक स्विमिंग नहीं चाहिए. उनको एक एवरेज बंदा चाहिए जो रनिंग भी अच्छी कर सके, जो स्विमिंग भी अच्छी कर सके, और पूरा होश में रहे और अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सके, अपने थॉट प्रोसेस को मैनेज कर सके. सो कमांडो एक ऐसा नहीं कि कमांडो एक अच्छा रनर ही होता है. कमांडो एक एवरेज बंदा होता है जो हर चीज़ को अडॉप्ट करता है और उस चीज़ को अडॉप्ट करके अपने बेस्ट देने की प्रयास करता है हमेशा. वो तो मैं ये कहूँगा कमांडो बनना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक एवरेज बंदा चाहिए जो हर चीज को कर सके. ऐसा नहीं चाहिए कि एक एक रनिंग के बेस पे आपको कमांडो नहीं चुना जाएगा, एक स्विमिंग के बेस पे आपको कमांडो नहीं चुना जाएगा, या आपका बहुत फिजिकल बहुत अच्छा है, आपकी पुशअप बहुत अच्छी हैं, आपकी पुलअप बहुत अच्छी हैं, आपका सिर्फ रोप वर्कअप बहुत अच्छा है, आपका बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स बहुत अच्छा है, तो इसलिए कमांडो बन जाओगे. नहीं, कमांडो, मरीन कमांडो बिल्कुल अलग एक स्पेशल फोर्स है इंडिया की, जो कि अभी तो कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चला है, नहीं तो उससे पहले तो लोग मार्कोस का तो नाम भी नहीं जानते. बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड फोर्स है. जितने भी मरीन कमांडोज के ऑपरेशन हैं आज तक वो क्लासिफाइड हैं, उनको खोला भी नहीं गया है.
इनफैक्ट या सो जैसे प्रवीण, सिंस प्रवीण वो फोर्स में थे तो ही नोज थिंग, एंड आई नो बिकॉज आई हैव बीन विद कमांडोज 3 साल जो भी मेरी पोस्टिंग थी। तो जैसे प्रवीण ने बताया सिर्फ रनिंग नहीं होता है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, प्लस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड दैट्स व्हाई दे आर एलीट, यू नो। सो कमिंग बैक प्रवीण, मैं दर्शक सभी लोग जानना चाहेंगे थोड़ा बिफोर वी टच इनटू द running and triathlon. What was that incident? Taj incident is a very famous incident. It was pretty unfortunate. But अगर संक्षिप्त में आप अगर बताना चाहे your role, and all of us know, we have read in paper, and that's why you have been decorated with Shaurya Chakra. So in short, if you can let all the viewers know, so because ये story जानने के बाद शायद ही कोई आपका running बोलेंगे छोड़ो यार running ये सुनते हैं। So yeah, short में अगर आप बताना चाहे तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा जो रोल था, अगर मैं 20 आपको सिर्फ ताज होटल के बारे में बताऊंगा, बाकी सारी काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाती है। मैं वहीं पे अभी कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है एक मरीन कमांडोज की, आप देख सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कट किया हुआ है उस वीडियो में। जब हम ताज के अंदर पहुंचे थे तो पूरा बुरी तरह से वहाँ पे डैमेज किया हुआ था टेररिस्ट, और एक टीम हमारी पहले से ही वहाँ पे काम कर रही थी जो कि गेस्ट को वहाँ से इवैक्यूएट कराने का पूरा काम देख रही थी। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे तो करीब हम वहाँ पे 3-3:15 बजे के आसपास हम सुबह मॉर्निंग में पहुँचे थे। तो पहले से काम चल रहा था, और टेररिस्ट जो थे वो ओल्ड हेरिटेज विंग को पूरी तरह से डैमेज कर चुके थे, जला चुके थे। अभी हमको जो एक नई टीम वहाँ से बनाई गई कि एक नई टीम बनाते हैं, तो हम 4 लोगों को चुना गया उसमें। तो सबसे पहले मैं था उसमें पॉइंट मैन। तो पॉइंट मैन उसको कहते हैं जो सबसे आगे चलता है, तो उसका जो आर्क ऑफ फायर है वो उसका 180 डिग्री हो जाता है। तो लेफ्ट एंड राइट एंड फ्रंट तीनों एरिया को पॉइंट मैन कवर करता है। तो हम लोग फिर सीढ़ियों के रास्ते से चैम्बर के अंदर कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको करीब करीब आप कहें तो 400 से 500 लोग चैम्बर के अंदर थे, क्योंकि 3 शादियां थी उस दिन चैम्बर के अंदर। तो वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल के लाना था, प्लस ताज के जो एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर रेमंड बिक्सन, उनका ऑफिस भी चैम्बर के बराबर में ही था, तो उनको भी निकालना था। तो उसके लिए हम लोग फिर स्टेयर केस से आगे गए, ऊपर गए। तो वहाँ पे जब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम था, ऑफिस था उनका, तो उसको खोला। तो वहाँ पे 2 लोगों को हमने निकाला वहाँ से। उसके बाद हम लोग ऊपर गए, तो जो एलवे हमारा होता है, कॉरिडोर अगर बोले, कॉरिडोर में जाके देखा तो एक दरवाज़ा बंद था आगे, और उस दरवाजे से मतलब आधा वो कांच का है और आधा वो लकड़ी का बना हुआ था। तो मैं फ्रंट में था सबसे आगे, तो मैंने दरवाजे के पास पहुँच के देखा तो उधर से 3-4 जो अफ्रीकन आ रहे थे। तो मैंने उस नॉक किया दरवाजे को और अपना आई कार्ड उनको दिखाया कि आप दरवाज़ा खोलिए, हम आपको यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आए हैं। तो उन्होंने उस दरवाजे को काफ़ी खोलने का प्रयास किया, उस दरवाजे को खोल नहीं पाए वो लोग। वो दरवाज़ा ऊपर से बंद था और ताज के स्टाफ ने उसको बंद किया हो, तो लॉक किया हुआ था वो। तो हम फिर पीछे आए, तो वो जो अफ्रीकन थे वो अंदर की तरफ चैम्बर में चले गए। फिर हम पीछे हटे तो फिर एक और दरवाज़ा था। तो दरवाज़ा हम जैसे कमांडो टैक्टिक्स के हिसाब से उस दरवाजे को हमने खोला। तो दरवाजे के खोला तो उसके रूम के अंदर पूरा अंधेरा था। जो हमारे टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि रूम के अंदर अंधेरा है, सो अभी हम बहुत कम संख्या है हमारी, हम लोग 4 ही हैं, और ताज का जो सिक्योरिटी मैनेजर था सुनील कुरियादी वो हमारे साथ में था। सो जो टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि आप यहीं पे रहो, मैं जाके और 4 बंदों को लेकर आता हूँ। तो गए और 4 बंदों को फिर वापस लेकर आए। रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, एक कॉरिडोर से जो लाइट जा रही है वहीं तक हमको कुछ दिखाई दे रहा है, उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो उसके बाद हम जब रूम के अंदर घुसे तो जहाँ तक लाइट है वहाँ तक सब कुछ ठीक दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ही अंदर हम लोग घुसते चले गए तो उसके बाद पूरा अंधेरा है, और मैंने जो मेरा लेफ्ट हैंड था वो मैंने आगे की तरफ सरकाया, तो पता चला मेरे लेफ्ट साइड में दीवार है, तो मैं दीवार को पकड़ पकड़ के आगे जाने लगा। और मैंने जो सिक्योरिटी मैनेजर था उससे पूछा कि इसके स्विच किधर है, तो उसने कहा कि आगे ही होंगे स्विच। तो आगे बढ़ते रहे, करीब 10 कदम जाने के बाद मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच के साउंड सुनाई दिए।
जो कि बहुत ही क्योंकि हमारा सभी का वेपन तो ऑलरेडी सिंगल में था, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सबका वेपन का साउंड हमें पता है कि कहाँ से आ रहा है, और क्योंकि सबका वेपन ऑलरेडी सिंगल में डाला हुआ है तो हमारे बंदे तो उसको चेंज करेंगे नहीं। और जो साउंड आया था वो मेरे राइट साइड से आया था साउंड। तो दो टेररिस्ट थे जिन्होंने अपना जो सेफ्टी कैच था उसको स्विच को उसको चेंज लीवर को चेंज किया। तो मैंने वहीं पे अपनी पोजीशन ले ली। पोजीशन लेने के बाद फिर अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसी में था कि अपने आप को सैचुरेट करूं। सैचुरेट करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देगा। और जो टेररिस्ट थे वो टेररिस्ट हमसे हमारे पहुंचने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही उस जगह पे पहुंचे थे, हम हमारे पहुंचने से पहले। तो जैसे मैं बैठा था तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर एम लिया और मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया। तो जैसे ही फ्लैश दिखाई दिया तो मैंने भी अपना ट्रिगर दबा दिया। तो 3-4 राउंड शायद मेरे से फायर हुए थे और मैं वहीं गिर गया। मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता, मैं अनकॉन्शियस हो गया वहीं पे। उसके बाद जब ब्लड जब गरम गरम खून जब मेरे गर्दन के पास से जाना शुरू हुआ तो, और जो पेन था उसकी वजह से मैं दोबारा होश में आया। तो मुझे दोबारा कॉन्शियसनेस आई। तो फिर मैंने फील किया उस पेन को, और पेन को फील किया, और प्लस मैंने अपने चारों तरफ देखने की कोशिश की कि वहाँ पे मैं कहाँ पे पड़ा हुआ हूँ मैं। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को रूम में सैचुरेट किया और सब चीज़ें थोड़ी देर में मुझे दिखाई देनी शुरू हो गई। तो मुझे पता चला कि मैं इस रूम के अंदर अकेला हूँ और मेरी जो पूरी टीम है, पूरी टीम बाहर जा चुकी है, और मुझे जो है मेरा कान जा चुका है, गोली लग चुकी है मुझे, और जो पेन है उससे मुझे सफ़र होना पड़ रहा है। तो उस पेन को झेलना अब यहाँ पे क्या था कि अगर आप सिंगल साउंड भी करते हो तो उसकी आवाज़ टेररिस्ट तक पहुँच जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि आप इंजर्ड हो। तो इंजर्ड जो कमांडो है या इंजर्ड कोई भी बंदा हो जाता है तो उसकी जो पावर है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो सोचने की क्षमता है और उसकी फायर पावर भी कहें तो कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा होता भी है क्योंकि उसकी चोट के ऊपर उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, उसकी इंजरी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो मैंने कोई साउंड नहीं किया और मेरे पास कोई कम्युनिकेशन सेट उस समय पे नहीं था, मैं अपनी टीम को बता सकूं कि मैं ज़िंदा हूं या मुझे चोट लग गई है। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अपने वेपन को थाई पे रखा और देखा चारों तरफ। तो मुझे एक छोटी सी जगह मुझे दिखाई दी जो कि सोफ़ा था और दीवार थी, उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस था। तो मैं लेइंग पोजीशन में धीरे धीरे खिसक खिसक के उस जगह पे पहुंचा और अपने आप को कवर किया। और फिर मैंने अपनी चोट को देखा कि चोट कितनी है। तब मुझे फील हुआ कि मेरा जो लेफ्ट ईयर है वो पूरा जा चुका है और पूरे जो मांस का लोथड़ा था वो लटका हुआ था कान के पास ही, पूरा का पूरा डैमेज हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला और भगवान को एक बार थैंक यू बोला कि ये हेड शॉट था। और मैं सभी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि 2 शॉट सबसे खतरनाक शॉट होते हैं। सबसे पहला होता है हेड शॉट और दूसरा शॉट होता है रेस्पिरेशन शॉट। तो रेस्पिरेशन शॉट जो होता है वो चेस्ट के ऊपर आता है और जो हेड शॉट है वो आपके फेस के ऊपर आता है। तो टीवी में देखा भी होगा बहुत लोगों ने हेड शॉट को, क्योंकि जब भी कोई हिट करता है तो हेड शॉट लेता है। और हेड शॉट इसलिए लिया जाता है कि जो एनिमी है उसके पास में कोई चांस ही ना रहे सरवाइव का। तो अगर देखा जाए तो एक एमएम इधर हो जाता तो मेरी लेफ्ट जो आई थी इसके आर पार वो शॉट हो सकता था। तो एक्चुअली जो शॉट था वो ऊपर से क्यों गया, इसके पीछे भी एक रीजन था कि मेरा जो फेस था वो वेपन की बट के ऊपर रखा हुआ था। वेपन की बट के ऊपर इस तरह से था फेस मेरा। तो इस तरह से जो फोर साइट जो थी AK-47 की, उससे मेरी ये वाला पोर्शन ढका हुआ था। तो उसने जब शॉट लिया होगा देख के, उसने शॉट उस फोर साइट को देख के लिया होगा। सो मतलब ये इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। तो उस वजह से, और AK हमेशा अपने राइट की तरफ थोड़ा सा फायर करती है, उसकी जो फायर पावर है उसकी थोड़ा राइट में चली जाती है। जर्क जो आता है उसका राइट की तरफ आता है। अगर वहां पे आपका एक थोड़ा सा 1 mm भी वहां पे फर्क है तो आपके टारगेट पे काफी दूर पे चला जाता है।
तो मुझे लग रहा है जो एनिमी था, जो टेररिस्ट था, उसके हाथों में थोड़ी सी घबराहट आई होगी गोली चलाने से पहले। तो उस घबराहट के कारण ही जो शॉट था वो थोड़ा सा राइट की तरफ चला गया। वो राइट जो था मेरा लेफ्ट ईयर था। तो ये थोड़ी सी मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे के लॉजिक क्या है। तो उसके बच गए। तो फिर मैंने दोबारा उनके ऊपर उनको एंगेज किया और उनके ऊपर फायर शुरू की। तो फायर शुरू करते करते फिर मुझे लगा कि मैं इनको यहाँ पे ऐसे मार नहीं सकता। सो वो 2 टेररिस्ट नहीं थे, वो चारों टेररिस्ट उसी रूम के अंदर थे। सो उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और मैंने ग्रेनेड उनके ऊपर लॉब किया। तो अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेनेड नहीं फटा। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो जो इतना 59 आवर तक चलने वाला जो ऑपरेशन था वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। तो वहाँ, हाँ, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो नहीं फटा, उसके बाद भी मैंने वहाँ पे अब क्या कि जब आपका ब्रह्मास्त्र फेल हो जाता है, आप क्योंकि एक ही इसी तरह से आप एनिमी को मार सकते हो, जो जिसने कवर ली हुई है उसको सिर्फ एक ही तरीके से मारा जा सकता है, वो है आपका ग्रेनेड से हमला। तो ग्रेनेड नहीं फटा तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं है, क्योंकि अब जो फायर है वो आमने सामने की फायर नहीं, इस तरह से नहीं है कि वो खुले में वो बैठा हुआ, खुले में आप बैठे हुए हैं, इस तरह से नहीं है। उसने भी कवर लिया हुआ है और आपने भी कवर लिया हुआ है। सो तब तक हमारा फायर एक्सचेंज चल रहा था। तो इस बीच में क्या हुआ कि जो हमारी टीम थी, टीम कमांडर थे, उन्होंने ताज के जो सिक्योरिटी मैनेजर था उनसे पूछा कि इस रूम के कितने दरवाजे हैं, एंट्री एग्जिट किधर है, कितनी है इसकी। तो उन्होंने बताया कि यही दरवाजा एंट्री है और यही दरवाजा एग्जिट है, एंट्री और एग्जिट यही दरवाजा है। तो हमारी टीम वालों ने क्या सोचा कि अब काफी देर हो चुकी थी हमारी फायरिंग होते होते, करीब करीब 25 मिनट के आसपास हो चुका था अंदर हमारा आपस में फायर एक्सचेंज होते होते, और हमारी टीम का कोई बंदा अंदर आया नहीं था, क्योंकि अंदर फायर चल रहा है। वो भी कोशिश कर रहे थे अंदर फायर पावर डालने की जिधर से फायर आ रहा था, लेकिन चारों टेररिस्ट जो थे वो चैम्बर हॉल के बिल्कुल मेरे बिल्कुल अपोजिट में थे, आमने सामने का हमारा रोल था। तो अंदर बाहर से फायर उन तक पहुंच नहीं रहा था कुछ भी, और बाहर से फायर हो भी नहीं रहा था इतनी अच्छी तरह से। वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या करे क्या ना करे। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने टीयर गैस का सेल लिया और अंदर रूम के अंदर उन्होंने डाल दिया, टीम कमांडर ने। तो जो टीयर गैस का जो सेल था वो मतलब सामने दरवाजे के सामने तो मैं ही हूँ, थोड़ा सा हटके तो रोल होकर वो मेरे पास तक आया, तो वहां पे वो एक्सप्लोड हो गया। तो वहां से सफोकेशन शुरू हो गई। तो एक के बाद एक आपके चैलेंजेस हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले आपका ग्रेनेड नहीं फटा, दूसरा आपका जो एनिमी है वो आपके सामने नहीं है, तीसरा अब एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आपको इसको फेस करना है। तो जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ पे कट ऑफ होनी शुरू हुई तो सफोकेशन हुआ। तो सफोकेशन की वजह से मुझे खांसी आई। जैसे ही मैं खांसा तो उन्होंने, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने बर्स्ट में फायर किया। तो जो टेररिस्ट थे उनका फायर बर्स्ट में चल रहा था पूरा, तो पूरी दीवार को उन्होंने उधेड़ दिया था गोलियां चला चला के, क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा जिंदा है, और उनको ये नहीं पता था कि इंजर्ड है, क्योंकि मैंने कोई साइन दिया नहीं इंजरी का। तो उनको पता चल गया कि ये एक खतरनाक साबित हो सकता है। सो मैं फायर एक्सचेंज फिर भी करता रहा। तो जैसे मेरी खांसी है तो उन्होंने मेरे पर फायर किया, तो फिर मैंने अपने अलग अलग डायरेक्शन से मैं गोलियां चला रहा था उनके ऊपर। एक तरफ से एक जगह स्टैटिक रख के गोली नहीं चलाई मैंने, अलग अलग जगह से फायर किया, ताकि उनको सही लोकेशन का पता ना चल जाए। अगर सही लोकेशन का पता चल जाएगा तो फिर वो आपके ऊपर किसी और चीज़ से भी हमला कर सकते हैं। सो उसके बाद फिर मेरे पास 2 ऑप्शन बचे कि मेरा जो दम घुटने लगा उस जगह पे बैठे बैठे, और तो मुझे सिर्फ मेरे पास में उस समय पे 2 ऑप्शन थे कि या तो यहाँ पे बैठे बैठे सफोकेशन से अपने प्राण त्याग दो, या फिर अपने देश के लिए आप फायर जो है गोलियां झेलो और गोलियां आप उनको खिलाओ। तो जैसा विजय सर ने बोला कि हम यहाँ पे जो ट्रेंड किए जाते हैं वो हम यहाँ पे लोगों को, टेररिस्ट को या एनिमी को मारने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, ना कि मरने के लिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब तक एनिमी की लास्ट ब्रीथ है तब तक हम उनके साथ में लड़ते रहें, ताकि उनकी लास्ट ब्रीथ तक हम उनको ठोकते रहें, और अगर हम उनको ना ठोक पाए तो अपनी लास्ट ब्रीथ तक हम लड़ते रहें। तो उस समय फिर मैंने निर्णय लिया कि जो हमारी
टैक्टिस जो ट्रेनिंग है वो पार्ट रहता है, इस तरह की सिचुएशंस को किस तरह से टैकल किया जाता है वो सभी कमांडोज को सिखाया जाता है। तो फिर मैंने अपने वेपन को हिप पे लिया, हिप पे लेके मैं खड़ा होके मैंने फिर उनके ऊपर मैंने एक पूरे एरिया को जिधर से मेरे पर फायर आ रहा था मैंने उस एरिया को पूरा स्विप किया। तो स्विप करने में फिर एक टेररिस्ट को उसमें गोली लगी थी और जैसे मैंने खड़े होकर उनके ऊपर फायर किया तो उन्होंने बर्स्ट में मेरे ऊपर फायर किया, तो जिसकी वजह से 3 शॉट मेरे चेस्ट के ऊपर थे। एक कॉलर के पास से मेरे निकला और बॉडी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो मैंने बताया ना ब्रेन कि आपके थॉट प्रोसेस यहाँ पे मायने रखते हैं कि आपने क्या सोचा है, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से काम करना शुरू करती है। तो फिर जो सोचा हुआ था उसी को मैंने फॉलो किया। तो फिर मैं दरवाजे की तरफ मैंने अपना रुख किया और दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते तो मैं ऐसा हो गया था कि खत्म। तो मुझे पता चल चुका था कि गोली जो है वो चेस्ट में लग चुकी है और इतना पेन हो रहा था कि आप लाइक चलना वाला कुछ सब कुछ बंद हो चुका था। तो मैं बाहर दरवाजे के जाके गिरा। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा टर्न करूंगा थोड़ा सा इस चीज को कि वो टेररिस्ट ओल्ड से न्यू में क्यों आए और उसके बाद क्या हुआ। उस दरवाजे के जो रूम था चैम्बर हॉल, उसमें 2 दरवाजे थे। एक जो दरवाजा जिससे हम लोग एंट्री किए थे और मैं एग्जिट किया था, दूसरा दरवाजा किचन में खुलता था जिसकी स्टोरी आप टीवी पे देख चुके हैं, वो जो मूवी आई है किचन की जो शेफ थे वो उसी में थे। सो वो जो रास्ता था वो किचन में खुलता था। तो वो जो टेररिस्ट थे वहां से किचन के रास्ते फिर वापस ओल्ड हेरिटेज में चले गए और जो टेररिस्ट था उसको गोली लगी थी उसको भी वो अपने साथ में लेके चले गए वहां से। अभी वो न्यू हेरिटेज में क्यों आए थे और चैम्बर तक क्यों पहुंचे थे, इसके पीछे क्या है कि हमारे बसपा बहुजन समाज पार्टी के एक एमपी हैं, उन्होंने मीडिया को फोन किया कि हम लोग चैम्बर में फंसे हुए हैं, करीब करीब 400-500 लोग हैं। और ये चीज मीडिया वालों ने लाइव चला दी, उसको बार बार रिपीट किया गया टीवी के ऊपर और जितने भी हैंडलर थे वो कराची में बैठ कर ये सब चीजें देख रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग 3-4 लोग हैं जो पॉलिटिशियन है, जो एमपी है वो 3-4 एमपी थे, उसमें एक जर्मनी की सीनेटर भी उसके अंदर थी। तो वहां पे चीजें क्रिटिकल हो गई इसी एक फोन कॉल की वजह से। तो वहां पे उन्होंने फिर इनको फोन किया सैटेलाइट फोन से और इनको बोला कि आपके हाथ में तो जैकपॉट लग गया है, एक काम करो जाके उनको हॉस्टेज बनाओ और हॉस्टेज बनाने के बाद अपनी आप डिमांड पूरी कराओ भारत सरकार से। सो उस बीच में जब वो इन्होंने उनको कहा कि हमको नहीं पता कि ये होटल इतना बड़ा है कि हमको नहीं पता कहाँ है। तो वो पूछते पूछते लोगों को मारते रहे और पूछते रहे, तब ये लोग जाके न्यू टावर में पहुंचे और न्यू टावर में चैम्बर हॉल के बिल्कुल पास पहुंच गए। एक दरवाजा बीच में था, तो जो वो दरवाजा क्यों नहीं खोल पाए, क्योंकि हमारी मूवमेंट नीचे से चालू थी। हमारा जो वेपन का साउंड है सब कुछ आना शुरू हो जाता है, अगर कोई टीम मूव करती है तो थोड़ा थोड़ा वेपन का साउंड आता है, बातें थोड़ी बहुत चलती हैं। वो उनको पता चल गई, तो वो मैन चैम्बर की तरफ ना जाके ये दूसरा जो हॉल था जहाँ पे डाइनिंग हॉल था उसके अंदर चले गए और वहीं पे वो ट्रैप हो गए। और वो ऐसा मौका था जहाँ पे हम उनको आराम से मार सकते थे। तो 2-3 गलतियां यहाँ पे हुई कि पहले तो सिक्योरिटी मैनेजर थे, क्योंकि ऐसे टाइम में बहुत लोगों का ब्रेन काम नहीं करता है, कभी कभी बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती है। दूसरा, अगर हमको पता चल जाता कि यहाँ से एक और दरवाजा है तो वहां पे हम किचन में ही अपनी टीम को बिठा देते, 2 से 3 लोग भी बैठ जाते, आराम से हम उनको चुन चुन के मार सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर वो उस दरवाजे को तोड़ पाते जहाँ पे गेस्ट थे तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती कि हमारा देश घुटनों पे आ चुका होता। जिस तरह से कंधार जो हमारा प्लेन था वो हाईजैक हुआ, पूरा देश में इस तरह से हंगामा हो गया कि हम थोड़ी सी चीज़ को सहन नहीं कर पाते और हमारा लोगों ने संसद के ऊपर धरना देना शुरू कर दिया। तो ये सिचुएशन ऐसी आ सकती थी कि क्योंकि उसमें इंडिया के नहीं, उसमें फॉरेनर बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे हमको उन लोगों की डिमांड को मानना पड़ता, भारत सरकार को उनकी डिमांड को मानना पड़ता।
तो ये सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ से उस सिचुएशन को हम बचा पाए। और उस रूम से हमें एक रक्षक बैग मिला हमारी टीम को बाद में। उस रक्षक बैग में करीब 500 AK-47 के राउंड थे, 16 हैंड ग्रेनेड थे, उनके ड्राई फ्रूट्स थे, और उसमें फॉरेन करेंसी भी थी उस बैग के अंदर। और फिर मुझे तो हॉस्पिटल लेके गए। और मतलब ये यहीं तक मैं सीमित करूंगा, और बाकी बाद में कभी फिर सेमिनार होगा तो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। काफ़ी लंबी स्टोरी है। सो उस बराबर वाले रूम से, एक रूम से चैम्बर का अलग अलग पार्ट थे, तो एक पार्ट से करीब करीब 150 लोगों को वहाँ से निकाला गया। तो वहाँ पे जो सिचुएशन थी हमारी टीम की, वो एल शेप सिचुएशन थी। अगर टेररिस्ट मेरी तरफ आ जाते तो हमारी टीम को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। अगर मैं उस जगह पे प्रेजेंट नहीं रहता तो हमारी जो टीम थी वो लॉबी में थी, कॉरिडोर में थी, और कॉरिडोर में एक सिंगल जगह नहीं थी जहाँ पे हम छुप सके। सिर्फ एक ग्रेनेड या 2 ग्रेनेड हमला करने पे पूरी टीम ऐसे बिखर सकती थी, क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पे आपको छिपने के लिए, आपको कवर करने के लिए। कॉरिडोर बिल्कुल सिंपल होते हैं, खुले खुले कॉरिडोर होते हैं, कहीं पे भी आप चले जाइए। तो उस सिचुएशन में पूरी टीम सेफ हुई, और जो सिविलियंस थे, हमारे जो सिटीजन्स थे, उनकी जान बच गई। पूरा होटल का जो स्टाफ था और चैम्बर वाला, और वो उनको सेफ निकाल लिया गया। जो होटल के MD थे रेमंड बिक्सन, उनको वहाँ से सेफ निकाल लिया गया। और मैं तो फिर काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। सो हम सबके तरफ से प्रवीण, हम सबके जो सुन रहे हैं, जो है प्रशांत इज देयर, आपको नमस्ते। यू डिजर्व दिस बिकॉज सो ये जो भी सुन रहे हैं इनको ये जानना, ठीक है, टॉक इज ऑन फिटनेस, बट ये जानना बहुत जरूरी था कि आप किससे बात कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट माय इंटेंशन वाज, जी दैट जी। टू नो प्रवीण कौन है करके। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नो यू। सो थैंक यू प्रवीण। आई मीन भारत आप पर गर्व करता ही रहेगा जब तक चांद तारे हैं, तो यू विल बी, यू नो। जी सो सर। थैंक्स फॉर दैट। एंड अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कि यू नो, बीइंग सो फिट एज कमांडो, देन फिर ये इंसिडेंट के बाद अस्पताल आना एंड स्पेंडिंग टाइम इन हॉस्पिटल, नोइंग कि आपका लंग्स पंचर हो गया, उसके बाद द जर्नी टू आयरन मैन, यू नो, दैट इज समथिंग आई नो कि अगर आप एक्टिव कमांडो ही रहता है, तो इसमें कोई एक्टिव पैसिव नहीं होता, लाइफ लॉन्ग कमांडो। तो मुझे तो कहीं तो ये था कि ठीक है कमांडो है, प्रवीण तो कर लेगा, बट दैट जर्नी ऑफ आधा लंग रख के आयरन मैन करना इज समथिंग यू नो टोटली आउट ऑफ दिस थिंग। सो हाउ वाज दैट जर्नी इन शॉर्ट, अगर आप बता सकते हो, ताकि जितने भी लोग आयरन मैन बनना चाहते हैं वो कई कतराए नहीं कि ओके हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इंस्पिरेशन हो। तो या यू कैन। जी विजय सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा गांव है, मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ से बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक लोग हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे जो मेरे दादाजी लगते हैं रिलेशन में, चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म भी इसी गांव में हुआ जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। और ये वीरों की भूमि है, ये वीरों का गांव है। और मैं यहाँ पे अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे 3 किलोमीटर दूर मेरे डिस्ट्रिक्ट में, आपने सभी ने परमवीर चक्र योगेंद्र यादव जी का नाम सुना होगा। तो उनके घर से और मेरे घर की डिस्टेंस सिर्फ 3 किलोमीटर है। सो ये पूरा जो इलाका है ये उसी तरह के लोगों से भरा हुआ है। तो मैं अकेला नहीं हूँ, और मेरे बाद भी यहाँ से पूरे इस तरह के लोग निकलेंगे और मुझसे भी अच्छा काम करेंगे, और आज भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ की जो मिट्टी है, हमारे देश की जो मिट्टी है, उसको मैं हमेशा नमन करता रहता हूँ। और जो भी कुछ है हमारे अंदर, उस सीखने की कला है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारी मिट्टी की देन है, हमारे देश की देन है। और ये जो हमारा जीवन है ये भी हमारा इस देश के लिए ही निछावर हो जाना चाहिए। तो यही सोच हमारे पूरे गांव में और हमारे पूरे क्षेत्र में रहती है इस जगह पे। और जैसे 10th हो जाता है तो लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं कि फौज में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है। तो इस गांव से हर फोर्स में मेरे गांव से लोग हैं। अब मैं आता हूं अभी आयरन मैन के ऊपर सर। तो मैं स्पार्क की आप सभी को बात कर रहा था, एक स्पार्क क्या है। तो स्पार्क एक ऐसी चीज है, आप थोड़ा सा फूस लीजिए, घास के तिनके लीजिए, थोड़ा सा इकट्ठा कीजिए, एक छोटी लकड़ी लीजिए, एक बड़ी लकड़ी लीजिए, दोनों को आपस में आप रगड़ना शुरू कीजिए।
और जैसे धीरे 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 आप रगड़ते रहेंगे तो उनमें से थोड़ी थोड़ी स्पार्क शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जब स्पार्क शुरू हो जाएगा तो वो एक धुएं का रूप लेना शुरू करता है, और धीरे धीरे फिर और आप रगड़ते रहेंगे उन दोनों लकड़ियों को आपस में, तो वो जो धुआं है वो एक स्पार्क में तब्दील हो जाता है। और जो स्पार्क है, स्पार्क एक फायर का रूप ले लेता है, एक अग्नि का रूप ले लेता है, और एक छोटी सी चिंगारी एक अग्नि बन जाती है, और एक वो अग्नि जो है पूरे जंगल को जला के भस्म कर देती है। अगर उसका ये हुआ नेगेटिव रूप, और पॉजिटिव रूप देखें तो वो अग्नि आपको खाना पकाने के भी काम आती है, आपको सर्दी है तो आपको सेकने के भी काम आती है, आप जंगल में रह रहे हैं तो आपको जंगली जानवरों से बचाने के काम भी आती है। तो एक छोटी सी चिंगारी आपके जीवन में कहीं ना कहीं आती ही है, कहीं ना कहीं आपको कोरिलेट कर जाती है। तो वो स्पार्क जो है हर किसी की लाइफ में आता है। बहुत लोग उसको, मैक्सिमम जो लोग हैं 95 to 90% लोग उस स्पार्क की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो मैं उन सभी से कहूंगा कि वो स्पार्क जो है वो आपके अंदर खुद है, उस स्पार्क को ढूंढना शुरू कीजिए। स्पार्क चाहिए, एक बड़े से बड़े रॉकेट को चलाने के लिए स्पार्क चाहिए, छोटी सी चिंगारी चाहिए। तो वो जो आप खुद एक, जब आप कोशिश करेंगे अपने आप को जानने की, तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं से वो स्पार्क आता है आपके अंदर। तो उसी तरह से स्पार्क मेरी भी है कि मुझे भी कुछ इसी तरह से चीज़ें हुई कि जहाँ से मुझे अपने अंदर की जो चीज़ों का धीरे 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 पता चला कि अभी भी मेरे अंदर वही स्टेमिना, वही चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। तो मुझे उनको ढूंढना चाहिए और उनके ऊपर मुझे थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो ये कहानी शुरू हुई थी एक मेडिकल, या मैं थोड़ी सी और पीछे जाता हूँ, 2011 मुन्नार डैम में। तो वहाँ पे हमारा डाइविंग का कैंप चल रहा था। तो मेरे जो बडीज थे वो शाम को स्विमिंग कर रहे थे। तो सभी लोग स्विमिंग कर रहे थे, मैं उस दीवार पे बैठा हुआ तो सबको देख रहा था। तो क्योंकि मैं उस डैम में पता नहीं कितनी बार उससे पहले कूद चुका हूँ, उस डैम को कितनी बार क्रॉस कर चुका हूँ। सो उन्होंने कहा कि आ जाओ रेवती, आ जा, जंप कर दे, स्विमिंग करते हैं। तो उस समय पे मैं इतना हारा हुआ था, इतना थका हुआ था अपने आप से, वैसे नहीं, इतना थक चुका था, इतना हार चुका था कि मैं बाकी सब चीजें करने का मन ही नहीं करता था कि नहीं, क्योंकि जो इंजरीज थी उन इंजरीज ने मुझे इतनी बुरी तरह से तोड़ा था कि और बाकी सब चीजें कुछ दिखाई नहीं देता था मुझे जीवन में। तो मैं उस शाम उनके साथ स्विमिंग नहीं कर पाया और मैंने सीधा मना कर दिया। तो ऊपर से मेरे कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखे थे, पस और ब्लीडिंग उसमें से जाता ही रहता था। ये कहाँ बात है 2011 की। तो 2008 में चोट लगने के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे इन्फेक्शन चलते रहे। तो 2011 में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थे इसमें। तो 2-3 कारण थे। एक तो मेरे अंदर डर था, काफ़ी लंबा प्रैक्टिस हो गया। दूसरा डर ये था कि डॉक्टर्स ने मुझे बोला हुआ था कि ये तुम्हारे जो लंग्स है अब उस कैपेबल नहीं रहेगा कि आप दोबारा रन कर पाओ या दोबारा स्विमिंग कर पाओ। तो प्लीज़ स्विमिंग मत करना और रनिंग मत करना। ये हमारी तरफ से डायरेक्ट तुम्हें एक मैसेज है कि अगर कुछ भी होता है तो आपका दोबारा ऑपरेशन नहीं होगा। तो उस रात में मुश्किल से ही सो पाया होऊंगा। मैं सोचता रहा, अपने आप में खोता रहा कि क्या यही प्रवीण तेवतिया है जो इस डैम को एक बार डुबकी मारने के बाद सीधा 3 किलोमीटर बाद निकलता था, अपने जो ऑक्सीजन हमारे सेट होते थे। या वही तेवतिया है जो 50 से 60 मीटर अंडर वाटर स्विमिंग हम करते थे, कमांडो टेस्ट में होती है सारी की सारी चीजें। तो ये सब चीजें मंथन चल रहा था। तो एक आत्म मंथन था, जो स्पार्क में बोलूँ, एक आत्म मंथन में एक स्पार्क आया। और अर्ली मॉर्निंग मुझे सबसे पहले उठ के अपने जो बडीज थे उनके लिए चाय तैयार करवाना, सारा काम करवाना मेरा ही काम रहता था, क्योंकि मैं एडमिन का काम मैं ही देख रहा था अपनी सारी टीम का। क्योंकि कोर्स में है तो आप डाइविंग नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, तो बाकी आप एडमिन का देखेंगे। तो सारा काम मैं ही करता था। तो फिर दूध लाना है, सब कुछ लाना, वो मेरा ही काम रहता था। तो मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने जो हमारा डाइविंग जो ड्रेस रहती है स्विमिंग की, वो मैंने पहनी, उठा के लाया और मैंने पहनी। और मैंने कुछ नहीं सोचा, उसी दीवार पे जाके दोबारा खड़ा हुआ और मैं कुछ नहीं सोचा उस समय पे, नहीं, जो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। और मैं वहीं से डैम में मैंने जंप मार दी। ये तो अर्ली मॉर्निंग की बातें हैं। और जब मैंने डाइव मारी डैम के अंदर, जैसे जैसे पानी टच हुआ, पानी फिर धीरे 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 मेरे सर के ऊपर से जाना शुरू हुआ और मैं पानी के नीचे जाना शुरू हुआ। तो मैंने अपने
हाथ और पैरों को जब मैंने धीरे धीरे चलाना शुरू किया, तब मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ का पता चला। और मैं फिर वहां पे धीरे 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 स्विमिंग करने लगा, तो मुझे पता चला कि यस आई कैन। अभी तू मरा नहीं है यार, तू तू जिंदा है, तेरे अंदर वही चीज अभी भी है, बस उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, इन एक्सक्यूज को साइड में रखने की जरूरत है। अगर एक्सक्यूज के साथ आप चलते रहोगे तो एफर्ट कब करोगे, और एक्सक्यूज आप कब तक लोगे, कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे। और ये तो प्रत्यक्ष हो चुका है कि तुम कर सकते हो। तो उस दिन से मैंने अपने आप को फिर और ढूंढना शुरू किया। तो थॉट प्रोसेस को अपने जो मैं सभी जितने भी मेरे हमारे देखने वाले हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा कि अपने जो थॉट प्रोसेस हैं उनको आप मैनेज करना शुरू कर दीजिए। 1 मिनट में करीब करीब 2000 से 3000 आपके पास में थॉट आते हैं हमारे ब्रेन में। तो उन थॉट को आपको फिल्टर करना है, उनको मैनेज करना है कि क्या थॉट आपके लिए सही है और क्या थॉट आपके लिए गलत है। आते नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हैं। तो ये निर्णय आपका है कि फिल्टर आप करके कौन से थॉट को अपने बेहतरी के लिए आप उसको यूज करते हैं। सो वेरी इंस्पायरिंग, सो कहते हैं ना कि एक डायलॉग है इस ये शाहरुख खान की वो मूवी, मुझे याद नहीं है, दीपिका और शाहरुख खान की मूवी है कि अगर आप सोचो तो सारा कायनात एक हो जाता है पूरा करने में। तो ऐसे कहते हैं पावर ऑफ बिलीफ। सो जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, ये परफेक्ट एग्जांपल है, पावर ऑफ बिलीफ। जो प्रवीण इज अ परफेक्ट एग्जांपल। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, आपके बदन में जो एक एक सेल है जिससे आपकी मांसपेशियां सब बनती है, सारे सेल एक साथ हो जाएंगे कि वो नेगेटिव ही रहे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो एवरी सेल बिकम्स यूनाइटेड टू मेक इट पॉजिटिव। दैट इज व्हाट इज प्रवीण। और जैसे प्रवीण ने पहले भी कहा इसके पहले कि हम सब स्पेशल है, आप, मैं, प्रवीण, प्रशांत, जो भी सुन रहे, हम अपनी अपनी एक एक इंडिविजुअलिटी है, हम अपने आप में सभी लोग स्पेशल है। सो वो है कि हम अपने आप को कब जानेंगे और कब पहचानेंगे। दैट इज व्हाट स्पार्क तो प्रवीण ने पूछा। और जितना हम नेगेटिव लेते जाएंगे उतना हम नेगेटिव होते जाएंगे। सो प्रवीण, वो जो जर्नी थी आयरन मैन एंड लाइक एवरीवन नोज अबाउट यू, बट मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग दिस कोविड प्रवीण वाज, शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपना मेडल जो इतना अर्न किया है, इन्होंने वो चैरिटी के तौर पर लोगों को ये कर दिया ताकि उससे कुछ पैसे जमा करके जरूरतमंद लोगों को दे दे। तो शायद ही कोई मेडल, अगर आप रनर हो या ट्रायथलीट हो या कोई हो, तो मेडल एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। हाउ वाज दैट, व्हाट इंस्पायर्ड यू प्रवीण? बिकॉज ट्रायथलन का मेडल सब दे देना बहुत मुश्किल बात होती है, तो अगर आप उस पर थोड़ा टच करोगे तो। विजय सर, मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे हम अपने स्वार्थ के बारे में ना सोच के हम सबके बारे में सोचते हैं। मैं उन लोगों को भी देख चुका हूँ जो इस जर्नी को साइकिल से तय करके अपने होम टाउन जा रहे हैं। बहुत लोग हैं मेरे इस रोड से, बहुत लोग निकलते थे। मैं अभी तो बहुत दिन हो गए मुझे गांव में आए हुए। सो प्लस हम टीवी पे भी देख रहे थे किस तरह की सिचुएशन, प्लस हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हाथ जोड़ के हम सभी को से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना सहयोग करें देश को, आप अपना सहयोग देने के लिए। तो मेरी तरफ से मैंने ये विचार किया कि देखिए मैं अपनी तरफ से क्या सहयोग कर सकता हूँ। ये मेरे लिए उच्च बलिदान, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इस देश के लिए हम उच्च से उच्च बलिदान करें अपना। और ये मैं अपनी नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हर कोई अपना उच्च बलिदान देता है, चाहे आप जितने भी कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं, आपका उच्च बलिदान आपका टैक्स है। मैं टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को ज्यादा नहीं दे पाता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं और क्या दे सकता हूँ, किस तरह से मैं दे सकता हूँ इस देश को। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो मेडल हैं मैं उन मेडल को ऑक्शन करूं, और जो भी धनराशि इससे प्राप्त होगी मैं उसको पीएम केयर में दूं। पीएम केयर से डायरेक्ट आप उससे लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। और मैंने गांव में आके देखा भी, तो मेरे गांव में जो बीपीएल परिवार हैं उनको वो चावल लेकर आ रहे थे, उनको रोज 5-5 किलो चावल मिल रहा था, और लोग कितने खुश हैं। प्लस मैं टाउन में पास में ही है, तो वहाँ पे एक लाइन लगती थी, 500 रुपए सबके खाते में आए। तो उनको देख के इतनी तसल्ली हुई कि आप पूछे मत। जो दान है तब वो वसूल हो जाता है। आप लोगों की स्माइल देखते हो ना किसी के फेस के ऊपर, तो आपको लगता है ये मैं ही हूँ जो स्माइल कर रहा हूँ।
तो वो जो स्माइल है, उस स्माइल के हम जिंदा रहते हैं। अपना जो हमेशा कोशिश रहती है कि हम इस देश के लिए उच्च से उच्च, अब क्योंकि सर हम लोग मैं सुनामी में भी था, मैं श्रीलंका में था, उस पार्ट में था, श्रीलंका गया था मैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और अलग अलग जगह पे बाढ़ों में भी हम लोग गए हुए हैं, साइक्लोन में भी हम गए हुए हैं। सो वहाँ पे हमारी प्रेजेंस होती है, वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो एक ये थॉट प्रोसेस था कि मैं डायरेक्ट तो सेवा किसी तरह से नहीं कर सकता हूँ हमारे देशवासियों की, क्योंकि उसके लिए आपको मेडिकली ट्रेंड होना चाहिए, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो मैं तो डायरेक्ट किसी की सेवा कर नहीं सकता हूँ कि कोविड पेशेंट्स की या अपने देशवासियों की। तो एक सही तरीका यही है कि हम पीएम केयर में हम पैसा दें, और वो जो पीएम केयर है वो खुद एक अथॉरिटी है, खुद लोगों तक पहुंचेंगे। और आज आप देख भी सकते हो कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो बजट प्रोवाइड किया है देश के लिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे आपके जैसे लोग ही हैं जिन्होंने इतना पैसा दिया है देश को खड़ा करने के लिए। देश की ऐसी जनता जो भूखों, जो मजदूर हैं, उनका तो यही ठिकाना नहीं था कि वो कमाई नहीं है उनकी। आपके घर पे मेड आती होंगी, आपने उनका सहयोग किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो काम पे नहीं आए हैं तो आपने पेमेंट नहीं किया है। आप जैसे लोग जो हैं उन्होंने भी उच्च बलिदान दिया है सर, और हर कोई दे रहा है, मैं अकेला नहीं हूं। तो मेरा पार्ट ये था कि मैं किस तरह से अपनी भूमिका निभाऊं एज ए एक इस देश का नागरिक होकर। यार प्रवीण, आई मीन जो बोलते हैं ना, ये थॉट प्रोसेस, एक होता है कमांडो यूनिफॉर्म पहनने तक, फिर होता है कमांडो लाइफ टाइम का। तो आपको रियल हीरो हो, एक होता है रियल हीरो और एक होता है रियल हीरो। तो आप ही हो कि यंग जनरेशन या बाकी लोगों को इंस्पिरेशन ऐसे होता है। ये होता है हीरो। देखो तो देखो, देखने वालों, ये होता है हीरो। तो सब हीरो है सर, सब अपना अपना पार्ट पूरा कर रहे हैं। सही बात है। और मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं कुल बोलूँ कि देश मेरे कंधों पे चल रहा है, ऐसा मैं इस डाउट में नहीं रहता हूँ। देश अकेले मेरे से नहीं चलेगा, देश हम सब से मिलकर चलेगा। और हर किसी का एक अपना अपना रोल है। जो रनिंग कर रहे हैं वो भी देश को कुछ ना कुछ सहयोग दे रहे हैं। हेल्थ आप देखिए, अगर आप हेल्दी हैं तो आप देशभक्त हैं, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप देशभक्त हैं, क्योंकि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक हेल्दी जीवन जी रहे हैं। सो हम सबका एक फर्ज बनता है, जो भी देख रहे हैं या ये माध्यम से या एफबी के माध्यम से, somehow all of us have to contribute, छोटा मोटा। आप जैसे कल ही हम रोड पे गए थे, कितने लोग, उनको देख के ना कभी कहीं आपको अपना दर्द कम लगेगा कि अच्छा ठीक है, मैं तो सिर्फ, मुझे घर में बैठने बोला जा रहा है, फिर भी लोग होंगे नहीं मैं बाहर घूम के, तो नहीं, अगर आप रोड पे देखोगे तो आपके आंसू निकलेंगे। कल एक न्यूज पे चैनल पे बता रहा था, बम्बई से एक टेम्पो गई, मॉर्निंग में इंटरव्यू लिया कि चार पांच लोग वो गाड़ी में थे। वही बंदा शाम को कसारा या क्रॉस करने के बाद वही गाड़ी के एक्सीडेंट हो गई, सुबह उसने इंटरव्यू दिया, शाम को डेथ हो गया। तो ये सिचुएशन है। तो हम सब अपना अपना एक छोटी सी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर थोड़ा सा। मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं कल शाम की एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे घर के सामने ही रोड है, बिल्कुल मेन रोड है हमारे घर के। और शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास एक गाड़ी, हमारे रोड साइड में पेड़ है, तो एक गाड़ी पेड़ में ठुकी, और ठुकने के बाद वो जो खाई है उसके अंदर गिर गई। और ये घटना मेरे घर के सामने ही है। तो मेरे जो भतीजा है उसने मुझे आके बोला, चाचा चाचा वो गाड़ी गिर गई है, कि एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं एकदम से, जैसी भी सिचुएशन में था, वो भाग के मैं पहुंचा और जाके देखा तो जो गाड़ी है, गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और डैमेज होने के बाद जो बंदा है उसके अंदर फंस चुका है, और अंदर उसका ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है उसकी। तो मैं वहाँ पे था, मैंने सामने वाला शीशा था उसका उस शीशे को मैंने तोड़ा। उस तोड़ के फिर एक बंदे को भीतर भेजा। तो फिर उसको वहाँ से निकाला, और सामने वाले दरवाजे से, जो सामने वाली ग्लास है उसको तोड़ के उसको बाहर निकाला। फिर बाहर लाए, बाहर लाने के बाद जो हमारी चारपाई होती है, चारपाई बिछाई, फिर उसके ऊपर डाला। फिर देखा कि क्या हुआ है। तो उसकी जो टंग थी, वो टंग ऊपर ब्लॉक हो चुकी थी, ट्विस्ट हो चुकी थी। तो उसको मैंने खोला, ब्रीथ नहीं आ रहा था उसको। तो 65 प्लस बंदा था। तो जैसे मैंने उसका फेस मुंह खोला, तो मैंने फिर उसकी जीभ को सीधा किया, उसको ब्रीथ आना शुरू हुआ। तो फिर हमने एक कंबल पड़ा हुआ था उसकी गाड़ी से, कंबल उठा के उसको कंबल में लपेट दिया चारों ऊपर से, और उसको सांत्वना दी कि सर कुछ नहीं हुआ। तो
उसके बाद जैसे ही उसको ब्रीथ आना शुरू हुआ तो पूरा यहाँ पे फट चुका था बहुत बुरी तरह से, और उसका एक नी बिल्कुल टूट चुका था, लेफ्ट नी पूरा टूट गया था। मैंने फिर उसको फर्स्ट एड जो था फर्स्ट एड किया, उसकी नी को मैंने दोनों पट्टी ली, पट्टी लेके बाद 2 फट्टा लिया, 2 फट्टे से मैं उसकी टांग को बांधा। हमारे जो गांव वाले थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और सबसे बड़ी बात सर मैं बताऊंगा कि एक भी बंदे ने उनमें से कैमरा ऑन नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई, सब लोग उस बंदे को बचाने के लिए कूद पड़े। किसी को ये फिक्र नहीं थी कि वीडियो बनानी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट चला है कि चलो वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाने में कोई मगन नहीं था, सबको उस बंदे की जान की पड़ी थी। और कोई पुलिस को फोन कर रहा है, कोई एम्बुलेंस को फोन कर रहा है, कोई हॉस्पिटल को फोन कर रहा है, विद इन 5 to 10 मिनट वहां पे पुलिस भी आ गई, 10 to 15 मिनट एम्बुलेंस भी आ गई। और फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया तो पता चला, हॉस्पिटल में जब वहाँ पहुंचे तो जो भी मंडी समिति का हेड था बंदा, जो मंडी होती है उसका हेड था, उसको हम लेके गए। मैं ही था एम्बुलेंस में, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़ गए। तो वहाँ पे 1-2 मुझे जानने वाले थे कि बोला आप लेकर आए, तो मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, इस तरह से हुआ था। और एक और बात बताऊंगा कि यहाँ से टाउन करीब 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर मैं उसके साथ में गया, तो मैं उससे बात करता रहा, उसके सर पे ऊपर हाथ घुमाता रहा, उससे बात करता रहा, उसको सांत्वना देता रहा। तो वो पूछता रहा मेरे से मैं कहाँ हूँ, तो मैंने उसको बताया कहीं नहीं है, आप ठीक हैं, अभी हम एम्बुलेंस में हैं। बोला मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो मैं बोला कमर में दर्द भी जैसे हम पहुंचेंगे आपको इंजेक्शन दे दिया जाएगा और कोई बात नहीं है। तो पता चला उसके जो बेटे हैं वो नोएडा में रहते थे, वो खुद यहाँ से और सिकंदराबाद पास में है, वो मंडी में जा रहा था काम से, और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, सामने गाय आ गई, गाय को बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ। और ये कहते हो छोटी सी अगर हम गलती कर देते वहीं पे तो हो सकता था उनकी जान चली जाती। क्योंकि हम वीडियो बनाने में मस्त ना रहे और कोशिश करें फर्स्ट एड का कोर्स करें, सीखें फर्स्ट एड किस तरह से होता है, और आप किसी की भी लाइफ को बचा सकते हैं सर। सो यहाँ से 2 सीख, बहुत इंपॉर्टेंट सीख मैं ले रहा हूँ कि वन इज मोबाइल फोन होने की वजह से जो लोग क्या करते हैं, सब सिचुएशन भूल के सब चालू हो जाते हैं, सेल्फी मारना ये मारना। सेकेंड थिंग इज या सबकी हर एक जान प्यारा होता है, जैसे आपने कहा वो बंदे ने गाय को बचाने के लिए ये, तो गाय को बचाने के लिए। सो प्रशांत, अगर आप फ्यूचर में कभी सेमिनार करोगे तो प्रवीण के लिए ये वेबिनार बहुत छोटा जगह है। बहुत छोटा, आई नो दैट, बहुत छोटा। नाउ कमिंग बैक प्रवीण, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं सारे, कल रजत शर्मा जी थे उनके न्यूज चैनल, तो सभी ने कहा है कि ये ऐसा टाइम है जहाँ फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी वो। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो दर्शक है कि लोग इंडोर रनिंग कर रहे हैं, आउटडोर आउटडोर तो खैर मना है, उसमें भी काफी डिबेट होता है, आप बाहर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, जी है सोशल मीडिया है होगा, लोग इंडोर रनिंग कर रहे हैं, पहले सबको वो भी अच्छा लगता था, फिर एक अनदर टॉक आ गई कि इंडोर रनिंग भी ठीक नहीं है, पैर दुखेगा। सो आपका क्या टेक है, बिकॉज आप तो एक्सपर्ट हो ये सब इसमें, तो प्रोबेबली। और हेल्थ, ये टाइम पे हेल्थ पे कैसे ध्यान दे? सर विजय सर, मैं जितने भी हमारे देखने वाले मैक्सिमम लोग रनर हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि रनिंग या बाहर करें या भीतर करें, रनिंग रनिंग है। लेकिन इसके कुछ 3 तरह की रनिंग हमारी होती है। एक तो हम ट्रेडमिल पे रन करते हैं, एक आउटडोर रन करते हैं, और एक हमारी स्पॉट रनिंग है। तो 3 तरह की रन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। लेकिन जो आप इंडोर रनिंग है वो कहीं ना कहीं आपके नी को, आपके एंकल को डैमेज करेगी, क्योंकि आपके पास स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्ट्राइड है वो लेंथन नहीं हो रही है। और जो स्पॉट रनिंग है वो भी अच्छी है, आप हेल्थ के लिए दौड़ रहे हो, तो ये आपको निर्णय लेना होगा कि आप प्रूव क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप हेल्दी प्रूव करना चाहते हैं तो ऑन द स्पॉट जो स्पॉट रनिंग है वो भी अच्छी है, ट्रेडमिल रनिंग है वो भी अच्छी है। थोड़ा सा खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि जो आपकी बॉडी से टॉक्सिस निकल रहे हैं वो आपके घर में ना रहें, क्योंकि जब आप अपने डाइनिंग रूम में रनिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पूरे पसीना जो है वो पूरे के पूरे हॉल में बिखर जाता है, तो उससे आप दूसरों को बीमारियां दे रहे हैं, उससे बचें। अगर आपको स्पॉट रनिंग करनी है तो बालकनी में जाके कर लीजिए।
और ट्रेडमिल रनिंग है तो ट्रेडमिल तो पहले से ही जिम में है, ट्रेडमिल रनिंग बहुत लोग करते हैं, वो भी अच्छा है। तो रनिंग का ऐसा नहीं है कि नुकसान देती है, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपको प्रूव क्या करना है। इंडोर रनिंग करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो बहुत टाइप के एक्सरसाइज हैं। मैं खुद यूट्यूब के माध्यम से लोगों से जुड़ा हुआ हूं और हर बार मैं कुछ ना कुछ नई वीडियोस, कार्डियो की मैं एक्सरसाइज लेकर आया, फिर मैं एब्स की वो एब्स के बारे में था पूरा ट्रेनिंग, 5-6 मिनट की वो वीडियो लेकर आया, प्लस मैंने प्लैंक्स के वीडियोस बनाए, योगा के मैंने वीडियोस बनाए। और मैंने वॉक, अगर आपको हेल्दी रहना है तो वॉक कर सकते हैं। रन करने से कहीं ना कहीं एक तो पड़ोसी परेशान हो सकता है, रन करोगे तो पूरे एक साउंड क्रिएट होता है जो आपके, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है आजकल, तो आपका जो स्टैपिंग है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करेगी, तो इसका ध्यान रखें कि दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे। और दूसरी तीसरी बात यह है कि आपका जो रनिंग मूवमेंट है वो पूरा का पूरा सर्कल पूरा नहीं हो पाता, वो एक आप घूमते 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 आपका जो ब्रेन है, आपका जो फोकस है, फोकस जो है वो खराब हो रहा है उससे, क्योंकि आपको एक ही जगह 10 मीटर 12 मीटर के रूम के अंदर आप घूम रहे हो, तो उससे मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फायदा होने वाला है। और उससे आपके एंकल में पेन हो सकता है, आपका नी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस जो सरफेस है वो सरफेस बहुत ज्यादा चिकना सरफेस है, वो आपका रफ सरफेस नहीं है। जो हमारे घर के जितने भी सरफेस है रफ सरफेस नहीं है, और जो रनिंग है, रनिंग हमेशा रफ सरफेस के ऊपर की जाती है, ना कि प्लेन सरफेस के ऊपर। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। अगर आप प्लेन सरफेस के ऊपर रनिंग कर रहे हैं तो उसका कुछ फायदा होता नहीं है। रनिंग के लिए हमेशा रफ सरफेस चाहिए ताकि उससे आपका फ्रिक्शन बना रहे। और लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग 85 किलोमीटर रन भी करने वाले मुझे मिले हैं, कुछ लोग मैराथन कर चुके हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो सरफेस है हमारे घर का, जो फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा चिकना होता है, तो कहीं ना कहीं आप उससे आपको डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि आप गोल 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 घूम रहे हैं, तो उससे एक चक्कर आने की जो लोगों को बहुत ज्यादा चक्कर आ जाता है कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस में, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं हिट हो जाएं, तो उससे भी आप बचें। आपको हेल्दी रहना है तो आप स्पॉट रनिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा सरफेस रफ होना चाहिए, या उस जगह पे आप कोई मैट, अच्छा सा मैट या फिर कारपेट डाल के आप उसके ऊपर स्पॉट रनिंग भी कर सकते हैं। सो जो भी दर्शक सुन रहे हैं, आई थिंक प्रवीण का व्यू है, और काफी सारे बड़े कोचेस भी जो हैं, इंटरनेशनल कोचेस, उन्होंने भी कहा है कि अगर आपको फिट रहना है तो बहुत सारे माध्यम है, और हाउस वर्कआउट, होम वर्कआउट, बहुत सारी चीजें, और ये कुछ चंद दिनों की बातें, फिर हम बाहर जाएंगे, फिर खुले में दौड़ेंगे, हो सकता है कि मास्क पहने नहीं पहने, थोड़ी दिनों की बात है। अगर लोग, गरीब लोग इतनी दूर चल के जा सकते हैं, तो हम तो सिर्फ वर्कआउट ही बंद हो रहा है, वर्कआउट ही नहीं, रनिंग 1-2 महीने के लिए बंद हो रहा है, और हम वर्कआउट तो घर पे कर ही और रहे हैं। विजय सर, कोई एक और भी चीज मैं बताऊंगा जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि अभी कोई बड़ा इवेंट है नहीं, अभी कोई बड़ा इवेंट है ही नहीं, नवंबर दिसंबर से पहले कोई बड़े इवेंट है ही नहीं। तो नवंबर में भी अभी डेट सिर्फ TCS 10 के बैंगलोर की ही डेट आई है, उसकी और बाकी कोई डेट भी नहीं आई है। सो आपको प्रिपरेशन के लिए भी काफी टाइम है। लॉकडाउन खुल जाएगा अभी जून फर्स्ट वीक के आसपास हम आशा कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा, तो भी आपको ट्रेनिंग के लिए काफी टाइम है। और मैराथन की ट्रेनिंग तो हमेशा, मुंबई मैराथन की ट्रेनिंग लोग सितंबर अक्टूबर के आसपास में शुरू करते हैं। सही बात है। तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ ये ऐसा टाइम है जो नेगेटिविटी बहुत रहती है। अगर आप न्यूज़ देखो, व्हाट्सएप देखो, एवरीडे पॉजिटिव छोड़कर के कितने लोग मरे, कितने को कोविड हुआ है, तो ऐसे सब सिचुएशन एज अ कमांडो मेंटली फिट होना बहुत अनिवार्य है। जैसे आप ताज के लॉबी में थे, जब आपके सामने 4 टेररिस्ट थे, फिर भी आप मेंटली कहीं पे भी नहीं कतरा है, यू न्यू क्या करना है आपको। तो फिर मेंटल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है टोटल फिटनेस के लिए। तो आपका इस पर क्या राय है, या क्या एडवाइस देंगे लोगों को? तो मैं सर यही कहूँगा कि अगर हम उस सिचुएशन को देखें, किसी भी सिचुएशन को अगर हम लेते हैं, तो उसके जो सीड्स हैं वो बहुत पहले ही डल चुके होते हैं। अगर हम रनिंग कर रहे हैं और मेंटल टफनेस की हमें अगर जरूरत है, तो उसके जो सीड्स हैं वो हमको बैकग्राउंड में जाके ढूंढने होंगे। अगर हम जहाँ पे भी अपने आप को डाउन फील करना शुरू करते हैं कि लगता है हमारी स्पीड कम हो रही है, या मुझे कुछ इंजरी होने वाली है, या फिर मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, मैं
अपने आप को पुश नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके रूट्स आपको अपने बचपन में या कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे गड़े हुए हैं, आपको उनको कुरेदना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा अपने आप से कि कहीं पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कभी हुई थी जहां पे इस तरह की सिचुएशन से मैंने अपने आप को बाहर निकाला था। तो आपके वो, मैं अगर कहूँ कि मैं एज ए मोटिवेशन स्पीकर मैं आपको बोलूं कि जाइए और शीशे के सामने खड़े होकर कह दीजिए कि मैं कर सकता हूँ, ये एक उदाहरण हो गया, लेकिन शीशे के सामने आप खड़े हो, मैं नहीं खड़ा हूँ। आपको अपने अंदर से ढूंढना है वो रूट्स जो हैं, वो सीड आपके कहाँ से, आपके कहाँ पे आपने डाला हुआ है, कहाँ पे कभी ऐसी सिचुएशन हुई थी जहां से अपने आप को आपने खींचा था, और कहाँ पे आप, क्योंकि आज की सिचुएशन है हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो चुका होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत बड़े डाउनफॉल से गुजरा है, कहीं पे उसकी फैमिलीज प्रॉब्लम हुई है, हर कोई अपने आप में कंप्लीट है, हर किसी का कंप्लीट पैकेज है। तो वो चीज आपको अपने अंदर से ढूंढनी होगी, जो स्पार्क है वो स्पार्क वहां से आता है कि आपके जो पिछला वाला जो बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग आप बना के चले, क्योंकि थॉट प्रोसेस वहीं पे है। जो एक मैं बोला ना कि 1 मिनट में करीब करीब 2000 के आसपास थॉट आपके अंदर आते हैं। तो एक थॉट ये रहता है कि छोड़ दो, एक थॉट आता है कि मैं क्यों कर रहा हूं रनिंग। बहुत सारे, मुंबई में आप जाएंगे रनिंग करेंगे तो बहुत सारे बोर्ड आपको दिखने के लिए मिलेंगे, व्हाई यू आर रनिंग, सो रनिंग इज अ पेन। और मेरा अब आयरन मैन में मैं गया था तो उसके लिए बहुत सारे जगह पे मैंने बोर्ड को देखा, एंजॉय द पेन, यू पेड फॉर दैट। सो ऐसे ही मुंबई में मैंने बोर्ड देखे हैं कि हम उस पेन के लिए पे करते हैं, तो पेन क्यों लेना चाहते हैं। तो अगर आप गिव अप करने के लिए गए हैं तो आपको सोचना होगा कि क्या कारण है मैं दौड़ रहा हूँ, और मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ ये दौड़ के, और किसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ। सो अलग अलग, सबके लिए अलग अलग मायने हैं दौड़ने के। कोई हेल्दी रहने के लिए दौड़ रहा है, कोई अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दौड़ रहा है, कोई कुछ अपने अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को अप करने के लिए दौड़ रहा है, किसी को टाइमिंग पे काम करना है कि मुझे सब 4 मैराथन करनी है, मुझे 3:30 में खत्म करना है। तो सबका अपना अपना लक्ष्य है, तो उसका जो सीड है वो स्टार्टिंग लाइन के पास में है। या फिर कहें कि जो हम सभी प्रैक्टिस करते हैं, जब हम बातें करते हैं तो तुम्हारा टाइमिंग कितना था, तो सीड वहां पे डाला हुआ है। आपको सीड को ढूंढना है कि आप, यू हैव प्रॉमिस समवन टू फिनिश द मैराथन, और आपका कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बंधु, कोई ना कोई टीममेट फिनिशिंग लाइन पे आपका वेट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, हो सकता है वो आपकी वाइफ हो सकता है आपका कलीग हो सकता है आपके रनिंग ग्रुप से हो सकता है जिस रनिंग ग्रुप की आप टी शर्ट पहन के भाग रहे हो उस रनिंग ग्रुप ने आपके ऊपर फेथ जताया हो कि आप कर सकते हैं। तो आपका, तो वो जो कहता हूं ना कि मैं कह रहा हूं कि शीशे के सामने खड़े हो जाके देखो, लेकिन ये कहना है कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन ढूंढना तो आपको खुद को है कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं। और जो मेंटल ब्लॉक्स हैं हमारे अंदर कि छोड़ देता हूं, क्या प्रूव करना है, सो उसको कैन और कैनॉट में अपने आप को ढूंढना है। कैनॉट से और कैन की तरफ जाएंगे तो बहुत लंबी जर्नी है अगर हम बात करें तो। और कैनॉट के ऊपर मैं करीब करीब 30 से 35 मिनट का एक जगह पे लेक्चर भी ले चुका हूँ। तो कैनॉट को कैन में कन्वर्ट करने में क्या क्या सिचुएशंस हमको फेस करनी होती हैं, क्या क्या मेंटल ब्लॉक्स आते हैं, और किस तरह से हम उनको टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए कभी हमारा लाइव सेशन होगा, तो उसमें मैं पूरी सारी चीज आपको क्लियर करके बता दूंगा। तो कहते हैं ना कि रनिंग इज अ फिजिकल मदर। स्पोर्ट, यू नीड टू बी मेंटली टफ। सो दैट इज व्हाट प्रवीण ने सारांश में कह दिया। सो जैसे कहा है कि जब आप स्टार्ट लाइन पे खड़ा रहते हो कोई भी मैराथन, मुंबई मैराथन, तो स्टार्ट लाइन पे अगर 40,000 लोग होंगे या 10,000 लोग, हर एक बंदे का कहानी अलग है कि वहां तक वो कैसे पहुंचा। और वो आप रन करके जब फिनिश लाइन क्रॉस करते हो, सबने अपनी अपनी लड़ाई जीती है। जो आंखों से आंसू आता है, जो खुशी से आप हाथ ये करते हो, किसी को गले मिलते हो, सबने अपनी अपनी कहानी। ये नहीं कि स्टार्ट लाइन पे जब आप पहुंचते हो, लास्ट एक एंड प्रोसेस होता है, उसके पीछे 5 महीने की मेहनत, कई लोगों का सेक्रीफाइस होता है। सो दैट इज व्हाट रनिंग टीचर्स ऑल ऑफ अस, एंड व्हाट एन आइकन प्रवीण इज। सो कुछ चंद सवाल और
बहुत ही प्यारा सेशन रहा कि पूरा बैकग्राउंड आपका जान चुके। एंड देन ठीक है, फिटनेस एंड रनिंग इज फाइन, यू नो वी गेट लॉट ऑफ एडवाइस, बट आपका ये पहला पार्ट जानना बहुत जरूरी था। तो अगर आपसे पूछे प्रवीण कि साल में कितना मैराथन या कितना हाफ मैराथन, बिकॉज हम बहुत देखते कि हम सभी काफी साल से रन करते, बट काफी लोग नए भी आते हैं, या वो लालच होता है कि मेडल का, या वो होता है कि नहीं मुझे करना है, किसी सभी अपनी अपनी जगह पे सही है, यू नो। तो आप एज अ यू नो एक्सपीरियंस रनर, एज अ कमांडो, आप क्या कहना चाहेंगे कि कब इसमें जंप लेना चाहिए, कितना हाफ मैराथन या फुल मैराथन साल में, मंथ में? तो योर टेक ऑन दिस। जी, जितने भी हमारे दर्शक हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैराथन आप जो नए बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स महीने में एक हाफ मैराथन कर सकते हैं आराम से। जैसे मुंबई रोड रनर हैं वो ऑर्गेनाइज भी करते हैं, महीने में एक रन ऑर्गेनाइज करते हैं, वीक के फर्स्ट संडे को शायद करते हैं। तो उनका पहले से ये वो साइंटिफिक है, क्योंकि एक मैराथन हाफ मैराथन अगर होती है तो आप अपने फिजिकल लेवल है उसको मेंटेन किए हुए रहते हैं। और अगर आप एक साल तक हाफ मैराथन कर चुके हैं तो आप हर महीने 2 हाफ मैराथन कर सकते हैं। अगर आप 2 साल तक हाफ मैराथन 2-2 करके आप कर चुके हैं तो तीसरे साल आप 3 हाफ मैराथन एक महीने में कर सकते हैं। अगर ऐसे करते हुए आपको 4 साल हो गए हैं तो आप महीने में 4 हाफ मैराथन कर सकते हैं, जो कि मैं करता हूं। और फुल मैराथन एक अलग चीज है, लेकिन ये अलग अलग आपको सोचना होगा कि जो हाफ मैराथन है वो आप किस लिए कर रहे हैं, ट्रेनिंग पर्पज है या इवेंट पर्पज है। अगर आप इवेंट में जा रहे हो तो इवेंट हमेशा महीने में सिर्फ एक होना चाहिए। ट्रेनिंग आप कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो और 1 भी कर सकते हो। तो ट्रेनिंग पार्ट और इवेंट पार्ट दोनों को हमको अलग अलग दृष्टि से देखना होगा। अगर हम इवेंट करना चाहते हैं, हर महीने इवेंट करना चाहते हैं, तो एक इवेंट काफ़ी है, क्योंकि हम एक कम से कम आपको 3 वीक की तैयारी चाहिए, तब जाके आप एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और आपके हिसाब से डेट नहीं होती है किसी मैराथन की। अगर इस महीने मान लो कि 20 तारीख को मैराथन है, तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंथ 12 तारीख को मिले, तो गैप कितना हुआ, तो उस गैप में आपकी ट्रेनिंग कितनी हुई। तो ट्रेनिंग के ऊपर सारी चीज बेस्ड है। अगर आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है तो आप कभी भी अटेम्प्ट ना करें, और लालच मेडल का ना करें, क्योंकि जब भी कोई इवेंट में उतरे तो अपना बेस्ट या फिर एक प्लान करें कि मुझे इस मैराथन में करना क्या है और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो बहुत लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं बात करूँ तो मैं बहुत इवेंट में जाता हूँ, तो मैं हर इवेंट को अपना बेस्ट इवेंट नहीं देता हूँ और मैं कभी बेस्ट देने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारे इवेंट्स को ट्रेनिंग पार्ट लेके वहां जाता हूँ और एज ए ट्रेनिंग ही उनके अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ। और हमको चुनना होगा पूरे अपने ईयर के कैलेंडर में सिर्फ एक आप मैराथन या हाफ मैराथन चुने जिसके अंदर आपको पीबी टच करना है, और इसी तरह से अपनी एक फुल मैराथन चुने जिसके अंदर आपको पीबी टच करना है। तो पीबी टच करने वाली जो मैराथन्स हैं उनको चुने और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग आप उस एक मैराथन के लिए करें या एक हाफ मैराथन के लिए करें, बाकी जितने भी मैराथन्स हैं उनमें हमेशा आप कोशिश करें कि ये जो मैराथन है वो आप ट्रेनिंग पार्ट समझ के करें। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अकेला ऐसा बंदा हूं यहाँ पे मैराथन ग्रुप में जिसने मुंबई मैराथन करने के बाद में, मुंबई मैंने फिनिश की थी 3 घंटे 50 मिनट में, और वापस मैं दिल्ली आया, फिर मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से मैंने फ्लाइट पकड़ी दुबई की। 24 तारीख को 4 दिन बाद ही मैंने दुबई मैराथन में पार्टिसिपेट किया और मैंने वो मैराथन ख़त्म की 3 घंटा और 40 मिनट में। तो 10 मिनट का एक बहुत बड़ा गैप मैंने उसके अंदर दिया। और अब तो मैं वही कहूँगा कि एज ए प्रैक्टिस मैंने मुंबई मैराथन की और अपना बेस्ट मैंने दुबई मैराथन में दिया, और वो भी 4 दिन बाद। तो अब ट्रेनिंग पार्ट को लीजिए कि मैं अगर बोलूँ कि मैंने 3 से 4 साल मुझे ट्रेनिंग में हुए हैं, तो मेरी मसल्स जो हैं वो उस लेवल पे हैं, उस लेवल पे आ चुकी हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मैराथन्स जितनी भी 42 है या अल्ट्रा है तो उसको सस्टेन कर पाती है, और वो भी स्पीड में। नॉर्मल अगर आप चलोगे तो आप कितना भी दौड़ते रहो कोई, लेकिन जब आप एक फोकस्ड कर लेते हो कि मुझे इतने टाइम में क्लॉक करना है तो आपके ऊपर सर्टेन प्रेशर भी रहता है।
वहाँ से आने के बाद मैं 2 फरवरी को मैंने एक थे उनको पेश किया था कलकत्ता हाफ मैराथन में 1 आवर 40 मिनट्स के लिए मैंने उनको पेश किया। तो इतनी बड़ी 3 आवर 40 मिनट्स आप दुबई में क्लॉक कर रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, फिर 2 फरवरी को आप कलकत्ता में रन कर रहे हो, वो भी आप 4:30 के पेस से आप जा रहे हो, तो इतना आसान नहीं होता है। वहाँ से मैं 1:40 मैंने क्लॉक किया, उनको पेस किया। वहाँ से फिर मैं अपने फिर नेक्स्ट वीकेंड पे मैंने फिर आपको अपने लिए एक और रिकवरी रन की, 22 किलोमीटर का रिकवरी रन किया। फिर मैंने अपने आप को IDBI दिल्ली के लिए तैयार किया, NDM दिल्ली बोलते हैं उसको, और उसमें भी मैंने पेस किया एक बंदे को, उसमें पेस किया मैंने 3 आवर 45 मिनट्स के लिए। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी ट्रेनिंग जिस तरह की है तो आप उसको उस तरह से लें। प्लस आपका जो जितने भी रनर्स हैं सभी लोग आजकल गार्मिन यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि जो आपका हार्ट बीट है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। और हार्ट बीट बेस्ड ट्रेनिंग होती है 3 से 4 महीने की, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। साल में आप 3 महीने मिनिमम से मिनिमम हार्ट बीट बेस्ड ट्रेनिंग ज़रूर करें। मैं सभी जितने भी रनर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि 3 से 4 महीने हमेशा हार्ट बीट बेस्ड ट्रेनिंग ज़रूर करें। वो आपको एक अच्छा रनर और अच्छा एथलीट बनाएगी, प्लस आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपकी मसल्स, जितने भी हमारे मसल ग्रुप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। इससे ये समरी आई मीन जो दर्शक सुन रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप ट्रेनिंग रन एक होना चाहिए या रेस एक होना चाहिए। आपका बोलते हैं ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 टाइप का जनरली होता है कि ए रेस इज ऑलवेज योर रेस जिसपे आप टाइमिंग के लिए भागते हो, बी रेस इज लिटिल माइल्डर एंड सी रेस इज योर ट्रेनिंग रन। तो जो प्रवीण ने डिटेल में बताया, इसका संक्षिप्त यही है। एंड हार्ट रेट रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैफ रनिंग होता है या मैफटोन रनिंग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन ऑन योर। समरी में ये है कि हम सबको जानना है कि हम प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, वी आर हॉबी रनर्स। हम हमारे हेल्थ के लिए भागते हैं। हमें कुछ हो गया तो ऐसा नहीं कि हम बहुत सेल्फिशली हमारे लिए करें, हमारे पीछे फैमिली है। आप सिर्फ जो संडे सुबह तीना तान के बाहर जाते हो रन करने के लिए, वो ये ध्यान रखना कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पीछे बहुत लोग हैं। तो प्रोफेशनल्स है, वो अलग दौड़ेंगे। अगर आप उनको देख के मोटिवेट हो सकते हैं, बट उनको आप एम्यूलेट नहीं कर सकते। तो ये है। तो प्रवीण, फाइनल क्वेश्चन इज, अगर सारी रनिंग कम्युनिटी जो आपको सुन रहे हैं, काफी लोग वीडियो बहुत जगह जाएंगे भी, तो आपका एक मैसेज, एक हेल्दी मैसेज क्या होगा इन सब के लिए? मैं सभी जितने भी दर्शक है वो कहूँगा कि आप अपनी लाइफ में सिंगल फोकस रखें अपने आप को। अगर आप जितना ज़्यादा अपने टारगेट को नैरो करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। तो सिंगल फोकस्ड हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को सिंगल फोकस रखें। आपका मेन जो टारगेट है वो सिंगल फोकस होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उसके सपोर्ट में है। जैसे जितने भी रनर हैं, जैसे अभी विजय सर ने बताया कि हम सभी लोग हॉबी रनर हैं, हेल्थ के लिए दौड़ते हैं, तो मेन है आपका सिंगल फोकस। तो सिंगल फोकस एक मैराथन हो सकती है, सिंगल फोकस आपका बिजनेस हो सकता है, सिंगल फोकस आपका करियर हो सकता है, सिंगल फोकस आपकी जॉब हो सकती है। तो मेन है हमारा सिंगल फोकस। जो एरो है वो हमेशा सीधा आप देखोगे तभी पेनिट्रेट कर पाएगा जब वो आगे से सिंगल पॉइंटेड है। अगर उसको हम ब्रॉड कर देंगे, इस तरह से चौड़ा कर देंगे, तो कभी भी टारगेट को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन आप देखोगे एरो है वो उसको विंड को डाइवर्ट करने के लिए उसके सपोर्ट में क्या क्या चीजें रहती हैं, पीछे उसका आप देखोगे तो एक लंबा उसका रहता है ताकि उसको सपोर्ट मिले, और लास्ट में उसके विंग्स बंधे होते हैं उसको सही डायरेक्शन देने के लिए, और उसको एक जो पूरा स्टिक है वो उसको सपोर्ट करती है सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो आप सभी को सिंगल पॉइंटेड होना बहुत जरूरी है। रनिंग और बाकी जित हेल्दी रहना, जिम, जितने भी जिम वाले हैं जिम में जा रहे हैं, अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं, फिजिकल जितने भी हैं, योगा है, वो सब आपको हेल्दी बनाने की प्रक्रिया है। और सिंगल पॉइंटेड होना बहुत जरूरी है। आपका एम क्या है वो हिट होना चाहिए। अगर आप फ्लैट कर देंगे तो कभी भी टारगेट पे आप हिट नहीं कर सकते, टारगेट को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। थैंक यू प्रवीण। जो भी दर्शक सुन रहे हैं, probably we all are privileged to hear Praveen, and बड़े बड़े
स्टार्स हैं लाइक सचिन तेंदुलकर, वो सभी लोग प्रवीण की तारीफ कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रवीण ने टाइम निकाला, एंड थैंक्स प्रशांत फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वन टू वन प्रवीण से डायरेक्ट बात करने का। एंड सारे दर्शकों को जो देख रहे हैं देखेंगे, धन्यवाद, एंड थैंक यू प्रवीण फॉर अ वंडरफुल सेशन। जय हिंद, जय हिंद। जय सभी हिंद। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत। लगे रहें, देश की सेवा करते रहें। देश को आप जैसे नौजवानों की, आप जैसे हेल्दी पर्सन्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सही बात। ऑल ओवर टू यू प्रशांत। Yeah. Thank you both of you. Ye panel definitely, would not have been possible without you, Vijay. It says you need a right person for the right job. This is the perfect thing. Anyone else would not have given this entire session this kind of a wide reach and the questions and all. So thank you, Praveen sir. Thank you, Vijay. जय हिंद सर, And, जय हिंद सर, जय हिंद। yeah. जय हिंद। Thanks. थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।